Do you guys know something? Each one of you watching this video opened two very special gifts this morning. Guess what? Your eyes. I often say last night was the last night for some, and we are blessed with another chance to live a better life. And we can make the most out of our day and thus out of our life if we begin our day in a proper state of mind. Here are the 5 things to dwell upon as soon as you are up every single day. Number 1, begin your day with gratitude. Don't just charge your phones, watches, tablets, or laptops the first thing in the morning. Charge yourself up as well with positivity that will last you all day. And the most powerful of all positive emotions that will make you feel empowered is gratitude. Because it forces you to shift your attention to your blessings than to your problems, which are anyways going to be an integral part of all of our lives. Second, resolve to have a positive vision. Nobody, including ourselves, is perfect. Everybody has a good and a not so good side to them. And the tendency of the mind is to look at the not so good side. Every morning, resolve that you'll try and look at the positive side of people and neglect or deal with the dark side. Because the more we focus on the negative, our mind becomes occupied with others' faults, ruining our work, our day, our peace, our joy, and even our relationships. Third, trust the broader plan. Tell yourself that whatever is going to happen today, the apparent good or the apparent bad, is exactly what I need at this point of time in my life. Nothing more, nothing less. Have complete trust that every incident that's going to happen throughout the day, that which is beyond your control, is simply a small part of a much larger picture that will unfold eventually only for your good and your well-being. Keep reminding yourself of this as you're confronted with challenging situations through the day. Number 4, do the small things right. Although folding your sheets or comforters may seem small, they lead to a very big attitude. Like the US Navy Admiral William McRaven said, making your bed in the morning will reinforce the fact that little things in life matter. If you can't do the little things right, you will never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you'll come back home to a bed which you made, and a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. And number 5, decide to help someone. Don't they say everyone you meet is fighting a battle that you know nothing about? Be kind, be helpful, invest the energy of empathy, love, and kindness in people around you, and you'll receive the same back when you need it the most. Also, try to have a spiritual practice in your morning routine, a deeper connection which will illuminate your inside so you can brighten the outside. And after having done all of these, remember, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है. Every morning will bring some challenges, and every evening will leave us with wisdom and experience with which we are ready to open our 2 gifts in a fresher way the next day, if we are allowed to.
ग्रेचुटी क्या हो गया, हंसती क्यों रहती तू? ऑल वेल ना? अच्छा ठीक है, गई तो विल लिख के जाना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी मतलब मैंने क्या बताया था कल, क्या होता है ग्रेचुटी? जो तुमको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो बट ऑफ कोर्स है सर, क्या आपको करंट, जब आप जिंदा नहीं, सॉरी, जब आप रिटायरमेंट नहीं हुए, आप अंडर जॉब हो, आप अंडर वर्किंग हो, तब अगर आपको किसी भी प्रकार की ग्रेचुटी मिलती है तो क्या उसको एग्जाम करना चाहिए मैंने? तो सर एनी ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। एक चीज याद रखना, एनी ग्रेचुटी रिसीव, मैं लिखवा लूंगा सब कुछ बट अभी समझ लो, any gratuity received during the course of your employment will always be taxable। है या ना? ठीक है। उसके बाद में सर, अगर आपको एक बात समझ में आई कि अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है ड्यूरिंग द सर्विस, तो सर आपने बोला इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बराबर। सर लेकिन अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे, तो सर आपको देखना पड़ेगा क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या। अगर आप हो 100% एग्जम्प्टेड। कितनी मजा गवर्नमेंट वालों के, उनको ग्रेचुटी जितनी भी मिलती है उनको पूरा एग्जम्प्ट होता है। आई बात समझ में? बुलबुल सो मत जाना। हाँ, दूसरा सर, इसके अलावा अदर एम्प्लॉयज अगर बात करें, सर अब अदर एम्प्लॉयज में बात करें तो इसमें आती है दो बातें। सर क्या आप पोगा में आते हो? क्या आप पोगा एक्ट में आते हो? सर पोगा क्या होता है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पोगा बोले तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सर क्या आप पोगा में आते हो? या फिर सेकंड है, क्या आप पोगा में नहीं आते हो? सर अगर आप पोगा में आते हो, आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाते हैं, लेकिन अगर सर आप पोगा में नहीं आते हो तो थोड़े बहुत कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो सर बेसिकली ओवरव्यू में अगर मैं बात करूं तो ओवरव्यू में ये बात है कि सर ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, बट सर अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट तो इट इज 100% टैक्सेबल। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या? अरे हाँ या ना? क्या डोबड़ी, हाँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो तेरे को गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है क्या फर्क पड़ता है? तेरे को 100% टैक्सेबल है। सर अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है ग्रेचुटी, तब जाके आपको देखना है सर आप गवर्नमेंट हो या अदर एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इट विल बी 100% एग्जम्प्टेड। और अगर सर आप अदर एम्प्लॉय हो, अब अदर एम्प्लॉय में आपको देखना पड़ेगा सर आप पोगा में आते हो क्या और आप पोगा में नहीं आते हो क्या। आई बात समझ में? अरे सेजल, वृंदा, समृद्धि, रश्मि, मिताली, भारती, तुमको कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा मेरे को पता नहीं, तुम्हारे को एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे मेरे को। तुम्हारा कैम ऑन रखो। क्या? ओके। ग्रेचुटी बेटा, ये टेबल समझ। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अगर तेरे को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी मिलती है तो इट विल बी टैक्सेबल इन एवरीबडीज हैंड। अगर आपको ग्रेचुटी जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए थी वैसे ही आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है रिटायर होने के बाद में ग्रेचुटी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी जो मिलती है वो 100% टैक्स फ्री रहेगी। सर हमारे जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज को अगर मिलती है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे जैसा प्राइवेट एम्प्लॉय जो है क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है क्या। सर क्या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना हर इंसान को कंपलसरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपकी फर्म, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुटी एक्ट में रहना कंपलसरी है तो आपको रहना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं रहना पड़ेगा। तो सर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपके लिए कैलकुलेशंस अलग है, और सर अगर आप पोगा एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए एग्जाम्पशंस थोड़े अलग है। तो सर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे, बट ऑफ कोर्स तुम सोच के बताओ किसको ज्यादा प्रिविलेज मिलने वाले, जो रजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर्ड नहीं है? जो रजिस्टर्ड है। तो सर व्हाट इफ अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली कर सकता हूँ, वॉलेंटरी एक्ट है ये तो एक। तो कल जाके तुमने कंपनी के मत्थे पे मत मारना, ओ कंपनी तुम्हारी वजह से मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, ऐसी हरकतें मत करना। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब करना है इसके कैलकुलेशंस।
सर सबसे पहले तो क्या हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई कैलकुलेशन करने वाला है? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, वो तो 100% एग्जम्प्टेड है। अरे हाँ है ना? ठीक है। सेकंड है सर, व्हाट इफ अदर एम्प्लॉय का हम कैलकुलेशन करने की बात करते हैं। सर अदर एम्प्लॉय में सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ दोस पर्सन, पेमेंट मेड टू दोस पर्सन हु आर कवर्ड अंडर पोगा एक्ट। तो सर आपको क्या है ना, कितना एग्जम्पशन मिलेगा? तुमने कल सारी बुक में लिखा ना वो सब अपना? ठीक है, अब लिखना ग्रेचुटी, हेडिंग डालना ग्रेचुटी, हेडिंग डालना ग्रेचुटी। वरिंदा कैम ऑन रखना तेरा, अगर रख सकती है तो। हाँ सर, लैपटॉप चार्ज नहीं है, नोट। ओके ओके। सर एक सेकंड, थोड़ा ऊपर। हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन तो लेकिन दिख रही है ना? हाँ। इसका क्या लिखूँ मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का? एग्जाम्प्टेड। तुमने पूरा लिखना, पोगा मत लिखना, सिर्फ पोगा लिख के इन ब्रैकेट लिखना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। आंखें फट जाएगी तेरी बुलबुल आज। को दिख नहीं रहा। लैपटॉप नहीं है क्या तेरे पास? लैपटॉप पे वो खोल। इसलिए दिख रही, तो अभी नहीं दिख रहा। तो फिर आंखों का रेटिना का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया ना। पेमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स एक्ट नहीं रे, गुड्स कहाँ से आया? ग्रेचुटी। ओ मेरी माँ, गुड्स किधर लाई रे तू? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, तो थोड़ा सॉरी। तो जी नाम से तो गांधी डाल देवे तू, पेमेंट ऑफ गांधी एक्ट। नहीं नहीं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ऊपर करो ना। कितना बचा है तेरा?
स्टार्टिंग से। नींबू नहीं चखा क्या? नींबू चख के आने का, रात भर की उतर जाती उससे। थोड़ा नमक भी ले लेने का साथ में। लिख जल्दी। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। उठी तू? मेरे को तो लगा आज आतीस नहीं तू। श्रद्धा ऐसा है कि अभी आई तू? कब आई? मैंने ऊपर देखा नहीं, कब कितने पहले आई हुई तू? अभी आई। क्या मान रख तेरा? श्रद्धा ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मिलती है आपको आपके रिटायरमेंट के बाद में। अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है आपके रिटायरमेंट के पहले ही, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तो वो आपको हमेशा टैक्सेबल रहती है, क्योंकि आपको जो चीज रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए थी आपने अभी से लेके रख लिया, तो इट विल बी टैक्सेबल। सर अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है तो उसमें दो बातें। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलती है तो उसको 100% टैक्स फ्री हो जाएगी, और अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यह देखना पड़ेगा कि क्या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है क्या। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका कुछ कैलकुलेशंस है जो बाद में देखेंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कुछ अलग कैलकुलेशन है। ये बात समझ में? बस इतना ही देखा है अभी तक का। चलो इसका पार्ट ए। पार्ट ए क्या था? एग्जम्पशन फॉर एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पोगा। अरे ये जो लिखा ना अपन ने ए वाला पार्ट, इसको एलॉबरेट करके नीचे लिख रहा है, ठीक है? अभी लिखना मत, स्टॉप कर दो लिखना, लिखना स्टॉप कर दो, ठीक है? सर आपको ना तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, और इन तीनों चीजों में से जो भी लोएस्ट रहेगा उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। सर एक है ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव। सर आपको जितनी ग्रेचुटी मिली उसको ए पॉइंट में लिख दो। सेकंड में लिखना सर इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 20 लाख रुपए की, करेक्ट है? और तीसरा लिखना सर 15 डेज एवरेज सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सर मतलब 15 दिन की आपको सैलरी लेना है। सर साल पूरे महीने में? सर नहीं, महीने में कितने संडे आते हैं? तो सर महीने में दिन कितने बच गए आपके? 26। अब मेरा तेजस्विनी चौरडिया जी 26 दिन बचते हैं, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है जिसमें से 4 दिन मेरे चले गए संडे के। 30 में से 4 तेरा माइनस करेगा तो तेरा कैलकुलेटर तेरे को ऊपर से दिखाएगा, तेरे थोबड़े पे के ऊपर के उसका आंसर आता है 26 है। ऐसे देखती है 4 26 किधर से आया डोबड़े। हाँ तो सर 26 डेज बचते, तो सर आपको 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, मतलब आपने आखिरी मंथ में कौन सी सैलरी लिया था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। सर इन तीन का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला कैलकुलेशन ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, क्या जूम आउट करूं? अच्छा। सेकंड ₹20 lakhs, और थर्ड 15 divided by 26 into last drawn salary into completed year of service। सर कभी कभी तो 4 से ज्यादा संडे आ जाते, 5 आ जाते हैं, या नहीं, लेकिन हम उसको 26 मतलब वो एट रैंडम है। जनरल अपन 26 दिन का एक महीना पकड़ सकते हैं जनरल। अब जैसे इसकी बात करेगी तो फरवरी की, तो फरवरी में तो 26 दिन भी नहीं बचेंगे,
लेकिन वो जनरल है, उसको अपन छोड़ सकते हैं। एक आध 2 महीना उस तो ऊपर नीचे होगा तो दैट इज ओके, बट जनरली 31 मंथ्स का भी जो रहता है उसको भी छोड़ देंगे। 31 मंथ्स मतलब 31 डेज का जो मंथ्स रहता कुछ है नहीं कुछ नहीं, 15/26, 15/26। अपन जब भी बोलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, 30 दिन का महीना होता है जनरल में बोलते हैं। तो अपन 31 दिन का महीना कभी नहीं बोलते, अपन बोलते हैं जनरली 30 डेज अ मंथ होता है। आरओसी को भी आपको जो भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह करना है तो हमेशा 30 डेज बोला जाता है, ना कि 31 डेज बोला जाता है। तो 30 डेज एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हमने पकड़ लिया कि 30 डेज स्टैंडर्ड है। और अपन हर बार ऐसा अज्यूम कर सकते, अज्यूम मतलब हर बार जनरली ये बोल सकते हैं कि सर महीने में 4 संडे तो आते ही आते हैं, है ना, इस तरीके से। अब ना ये जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, इसका मतलब क्या होता है? सर व्हाट इफ मैंने 5 इयर्स 3 मंथ्स काम किया है, तो सर इसको अब 5.3 तो नहीं लिख सकता ना मैं, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ करूंगा मैं इक्वल टू 5 इयर्स में। लिखो मत, समझ लो पहले। सर व्हाट इफ मैंने 5 इयर्स 7 मंथ्स काम किया है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 6 इयर्स। सर व्हाट इफ मैंने 5 इयर्स 11 मंथ्स 29 डेज ये किया है, 6 ईयर। सर व्हाट इफ मैंने 5 इयर्स 1 डे काम किया है, 5 years। तो बेसिकली सर आप राउंड ऑफ किसके टर्म्स में कर रहे हो? 6 महीनों के टर्म्स में। आई बात समझ में? तो सर ये बात तो खत्म हो गई। अब दूसरा इसमें हेडेक है सर हमारा ये, सर एक और चीज, ये संडेज मतलब हमने इसलिए लिया क्योंकि छुट्टी के रहते हैं वो करेक्ट नहीं करना। करेक्ट। और भी अगर जो वैकेशन मिलती है उसका 15/26 खत्म। मतलब ये फॉर्मूला है 15/26 का, बट 26 का लॉजिक मैंने तुमको ये बताया कि उसमें 4 संडे इंक्लूडेड होता है। दिस इज फॉर्मूला। हाँ ये फॉर्मूला है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कोरोना भी आया तो भी ये 15/26 ही रहेगा, और अगर बुलबुल चली गई इस दुनिया से तो भी ये 15/26 रहेगा। ये अमर है, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होने वाला है। बस 26 क्यों है तुम पूछोगे कि सर 26 किधर से है? 15 समझ में आता है कि हाफ मंथ होता है, बट ये 26 किधर से आया? तो 26 का लॉजिक है कि एक्चुअली 30 दिन होता है, बट 4 दिन संडे चले जाते हैं आपके। सर मैं तो बुलबुल हूं, मैं तो सैटरडे को भी काम नहीं करती, मेरे हिसाब से तो आपने सैटरडे संडे दोनों छुट्टी देने चाहिए। नहीं ऐसे नहीं। हाँ निकिता, 5 ईयर्स 6 मंथ्स रहा तो पूरा 6 मंथ्स 6 ईयर्स, ठीक है। 6 मंथ्स के मल्टीपल मतलब 6 भी उसमें आ गया और उसके ऊपर भी उस केस में आ गया, ऐसा। हाँ 5 मंथ्स सॉरी 5 ईयर्स 5 मंथ्स 29 डेज, तो 5 ईयर्स ही आएगा। पीछे चले जाओगे तुम, क्योंकि 6 मंथ्स के मल्टीपल को उसने टच करने का था। सर अब बात है इधर सैलरी। अब सैलरी इंक्लूड्स व्हाट? सर सैलरी सबसे पहले तो इंक्लूड्स योर बेसिक सैलरी प्लस डीए इन ब्रैकेट इफ, अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में वो कंट्रीब्यूट करता है तो ही डीए आएगा। क्या बोला मैंने? अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में कंट्रीब्यूट करता है तो ही डीए आएगा, वरना डीए नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसके अलावा बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, इसमें कोई मगजमारी नहीं है, खत्म। तो डीए के बाजू में क्या लिखा है? इफ इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। चलो हुआ? सर हाँ अगर ये दिया हुआ नहीं रहा क्वेश्चन में तो अज्यूम क्या करेंगे कि बेसिक डीए नहीं लेंगे सर? मतलब अगर उसने बताया कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं फॉर्म कर रहा है तो नहीं, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो मतलब किस चीज के लिए क्या करना है तेरे को? इसमें क्या कंसिडर करेंगे? अज्यूम करेंगे कि वो पूरा तुम्हारे इसमें इंक्लूड होता है करके। अच्छा ऐसे ही अज्यूम करें। हाँ 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 रिटायरमेंट हाँ में इंक्लूड होता है। रिटायरमेंट में इंक्लूड होता है मतलब? नहीं, हाँ अगर कल कुछ बात। नहीं है तो रिटायरमेंट में ले लेंगे ना। यस यस यस, एक मिनट। अब ये लिखा
अब कुछ दूसरे कलर का पेन होगा तो वो उठा लेना हाथ में, या पेंसिल होगी तो उठा लेना हाथ में, कुछ भी, मतलब एक चेंज चाहिए मेरे को, बस इतना। ऐसा क्रॉस मार्क करना उसके बाजू में, नई चीज हो गई उसमें अंदर। इसके बाजू में ऐसा छोटा सा, हाँ करना है करना है। और अब नीचे लिखना, अब डीए पूरा लेंगे। डीए में अब दिमाग की मत लगाना सर ये रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं आता है क्या, खत्म सर, पूरा डीए लेके खत्म करो इसको। सर हमको डीए मिलता है 5,000 रुपए का, जिसका 30% जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट में, तो हम 30 लेंगे कि 70 लेंगे? अरे कुछ नहीं, तो पूरा 100 लेगा, कोई लोड ही मत लो। सर अगर आप पोगा में इंक्लूडेड हो ना तो मस्त काम है आपका, सर कैलकुलेशन ही नहीं है आपके इसमें, मस्त आपको करना है। पहले एक्चुअली जो रिसीव्ड हुआ आपको वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सेकंड सर आपको लिमिट लगानी है 20 लाख की, वो आपको पता है। तीसरी लगानी है सर 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में कुछ नहीं, राउंड ऑफ करना है आपको 26 साल के अंदर, राउंड ऑफ करना है आपको पूरे साल के अंदर, करेक्ट है। अब सर सैलरी में क्या आता है, सर सैलरी में इतनी सी चीजें, सिर्फ बेसिक लेना और सिर्फ डीए लेना है। सर हाथ जोड़ के विनंती करता हूं आपके साथ में कि इसमें कोई बोनस मत लीजिएगा, इसमें कोई कमीशन मत लीजिएगा। कमीशन परसेंटेज का होगा, कमीशन इसका होगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। सर डीए जो रहेगा वो परसेंटेज, अरे कुछ नहीं सर, प्लेन 2 फिगर लेना है, उसको ऐड कर लेना, खत्म कर देना उसको। आई बात समझ में? मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2020 आफ्टर कंप्लीटिंग 26 साल 8 महीना, मतलब 27 years अच्छा, 27 एंड रिसीव द ग्रेचुटी ऑफ 15 लाख। हाँ हाँ मेरे को पहला वाला मिल गया, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड आफ्टर द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, बेसिक सैलरी 50,000, डीए 10,000, 60,000, 60% ऑफ विच फॉर्म्स द रिटायरमेंट बेनिफिट। कुछ करने वाला हूँ क्या मैं इसका? मैं कितना करने वाला हूँ ऐड? कमीशन 1%, कुछ करने वाला हूँ क्या मैं? आगे का पढ़ू नहीं पढ़ू कोई फर्क पड़ने वाला है क्या मेरे को? बोनस 25,000, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या मेरे को बोनस से? मैं बेशरम हूँ एकदम बुलबुल जैसा, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ whichever is less है ना, एक मिनट एक मिनट, क्या क्या? whichever is less है ना, विच एवर इज लेस, यस इसको, हाँ विच एवर इज लेस रहेगा अपना। विच एवर इज लेस कर देना इसमें, ठीक है। कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पोगा। अरे ये मस्त वाला काम है सर इसमें, कवर्ड बाय पोगा ना, ठीक है, कवर्ड बाय पोगा कर लेते। अच्छा एक तुम ही करके दो ना, मैं क्या करूँ इसमें? लिखा नहीं पर हमने कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पोगा में रजिस्टर करना सकते हैं। पोगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई नीड ही नहीं है ना, पोगा में होगा नहीं होगा, उसको तो एग्जाम ही है ना। अरे अपन ने लिखा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 100% टैक्स फ्री है। आंसर दो मेरे को इसका, टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल के दो इसका। तुम करो फिर मैं भी करके दूंगा तुमको, बट तुम एक बार निकाल के दो आंसर इसका खुद से। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट।
अब आ रही है? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ लैक्स में बोलो, लैक्स करोड़ में बोलो, ऐसा कि 93 करोड़ आ रहा है, 94 लाख आ रहा है, क्या आ रहा है? 9,34,650 9,34,615। 650। वृंदा ऐसा बोल रही है तू? Yes, sir. अच्छा श्रद्धा कुछ हेल्प कर पाएगी? सर इसमें हम ग्रेजुटी ऐड करेंगे। किस में ऐड करना है तेरे को ग्रेचुटी? तू निकाल क्या रही है पहले ये समझ, तू क्या निकाल रही है एग्जैक्टली? अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी टैक्सेबल तेरे को मिली कितनी? 15 लाख। उसमें से एग्जाम कितना करवा रही है तू? एग्जाम मतलब अरे नालायक, एग्जाम मतलब जो 3 में से मिनिमम तू एग्जाम्शन ले रही थी ना, अच्छा थर्ड वाला 9,000 तो तेरे टैक्सेबल कितना होने वाला है? दोनों को माइनस करना था। कितना है? एक से कैमरा शुरू रख तेरा। अब मेरी मिताली बहन तेरे को पॉपकॉर्न लाके दूं मैं एक? एक्टू पॉपकॉर्न बटर कैरामल वाले कुछ? नहीं नहीं तो फिर आंसर देने नहीं बड़ी। किया क्या आंसर? मैंने किया तो सही, बट मैंने कुछ तो हो गया। अरे तो गलत आया तो पूछ तो सही कि मैंने क्या गलत किया, या मैंने मेरा ऐसा आंसर है। 565,385। अच्छा इसने आंसर दिया 565,385। मेरे को नहीं पता सही है गलत है, तुम लोग बताओ भाई तुम्हारे आंसर क्या आ रहे हैं? श्रद्धा बहन, समृद्धि। अच्छा एक लास्ट वाले का भी बता दो, सी का भी बता दो। इसका एग्जाम होंगे फुल। तो सर मतलब इतना कोई कैलकुलेशन करने का कोई मीनिंग है क्या? तो आपने ऊपर वाले का फर्स्ट का बताया 5,65,385। अरे ओ गधेड़ो, वो 9 लाख का तुम्हारा एग्जाम्शन है। टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी है? अरे वो जो 3 निकाल रहे हो ना तुम, वो देखो ना तुमने हेडिंग क्या लिखी है उसकी, एग्जाम्शन विल बी, इतने अमाउंट का आपको एग्जाम्शन मिलेगा। सर मतलब मेरे को मेरा बापू 500 रुपया देता है, उसमें का 200 रुपया मेरा एग्जाम्ट हो जाता, तो मेरा टैक्सेबल कितना बचेगा? 565 इनकम टैक्स को तुम्हारे एग्जाम्शन से मतलब है या टैक्सेबल से मतलब है? तो भाई साहब मैं उसको एग्जाम्शन निकाल के क्या दूंगा? एग्जाम्शन में एग्जाम्शन को टोटल रिसीव में से माइनस करके जो आंसर बचेगा उससे उससे मतलब है। तो फाइनल आंसर पे पहुंचो, ये 3 में से आपका मिनिमम जो भी रहेगा वो एग्जाम्ट होता है। भाई क्या बात समझ में है? ओके चलो ये समझ में आया यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा, कोई चीज नहीं समझी ऐसा कुछ है? पक्का नहीं समझा? रश्मि क्या नहीं समझा इसमें? अच्छा आंसर नहीं आया, ठीक है। तो फर्स्ट दो तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है। सर ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना था मेरे को? 15 लाख। मेरा लिमिट कितना है? 20 लाख। तीसरा क्या है मेरा? सर 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी बोलेंगे तो क्या क्या लेंगे हम उसमें? बेसिक सैलरी एंड बेसिक कितनी है? 50,000 प्लस डीए कितना है? हाँ 10,000। उसका 60% लेंगे ना? नहीं उसको पूरा लेंगे। ये हो गया सैलरी। इनटू इनटू क्या करना है अपने को? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसने कितने साल काम किया है? 26 साल 8 महीना शायद। तो कितना लेंगे हम उसको? कर कंप्यूट इसको अब। 15/26 इंटू 60,000 इंटू 27, इसका कैलकुलेशन कर कितना आंसर आता है? 6 ओके तो सर पहला आया था 15 लाख, दूसरा आया 20 लाख, तीसरा आया 9,34,000। विच एवर इज लोअर, इतने का आपको एग्जाम्शन मिलेगा। तो सबसे लोएस्ट क्या हुआ इसमें? 9,34,000। सर आपको एक्चुअली रिसीव कितना हुआ था? 15 लाख। उसमें से एग्जाम कितना किया आपने? 9,34,615। तो सर आपको टैक्सेबल कितना होगा? इतना।
समझा क्या? चलो आगे। रश्मि, श्रद्धा, ठीक है। तू पढ़ रही है ना श्रद्धा? हाँ। अब आता है पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या था? Not covered under को. लिखना। इसको कुछ नहीं मिला. ना ना, इसको उल्टा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से मिलेगा। मिताली तेरा म्यूट रखना, वो कुछ नॉइज आ रहा है तेरे पीछे से। सर इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट रहेगा सर ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। हाँ सर ये क्या लगे, ऊपर वाले में भी तो सेम था, ठीक है ना। दूसरे में शायद चेंज होगा, दूसरे में ₹20 lakhs। हाँ सर ये भी तो ऊपर सेम ही था, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सर फर्क कहाँ पड़ने वाला है, मतलब सीधी बात है सर, तीसरे में। तीसरे में क्या आएगा सर? हाफ। अब यहाँ पे 15/26 नहीं, 15/30 है। 15/30 मतलब ही तुम्हारा 1/2 हो जाता है, सिंपल सी बात है। वहाँ पे संडेज एक्सक्लूड नहीं होने वाले। हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months from retirement into completed year of service। सर मतलब ज़्यादा लोचा का है? ज़्यादा लोचा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लोचा है। सर कैसा लोचा है? थोड़ा सा यहाँ पे तुमने अगर 5 years 3 months काम किया तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा? ऊपर देखना, ऊपर 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 देखना। हाँ बुलबुल चिल्ला ले, तो वही पे म्यूट पे। 5 years। अगर मैंने 5 years 5 months किया काम तो कितना कंसिडर करूंगा मैं इसको? सर अगर मैं 5 years 11 months काम करूंगा तो इसको क्या कंसिडर करूंगा? आइडियली 6 करना चाहिए था, बट यहाँ पे कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटेड, यहाँ पे पार्ट वार्ट वाली 6 महीने वाली कोई बात ही नहीं आती है। अगर आपने 6 साल काम किया है तो 6 साल। सर 6 साल 1 महीना काम किया तो भी 6 साल। सर 6 साल 11 महीने काम किया तो भी 6 साल। सर 6 साल 11 महीने 29 दिन काम किया तो भी 6 साल। सर 7 साल काम किया तो 7। इसमें कंप्लीट है तो कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट नहीं है, खत्म। एक बात समझ में? अब सर दूसरी चीज, यहाँ पे जो सैलरी है, अब ये सैलरी में क्या क्या आएगा? सर सैलरी में आएगा आपका बेसिक, प्लस आएगा आपका डीए इफ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और आएगा सर आपका कमीशन इफ परसेंटेज बेसिस पे है तो। आई क्या बात समझ में? और यहाँ पे जो तुम्हारी ऊपर में लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, मतलब पिछले महीने की सैलरी देखना है। यहाँ पे पिछले महीने की सैलरी देखना है या पिछले 10 महीनों की सैलरी देखना है, और उसका एवरेज करना है, मतलब 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 करना है। अरे एवरेज वैसे ही करते हैं ना, तीन चीज का एवरेज डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 5 चीजों का एवरेज डिवाइड बाय 5 करोगे, 10 चीज का एवरेज डिवाइड बाय 10 करोगे, 100 चीज का एवरेज डिवाइड बाय 100 करोगे। तो सर इसमें एवरेज क्या करना? हर 10 महीने में तो सेम रहेगी, जरूरी नहीं है।
हो सकता है तुमको ऐसा बोल देवे कि 2 महीने पहले उसकी पगार बढ़ गई थी 3,000 रुपए, तो अब तुम्हारे 10 महीने के कैलकुलेशन में 7 महीने की पगार अलग रुपीस की आएगी और 3 महीने की पगार अलग रुपीस की आएगी, और उसको तुम करोगे डिवाइडेड बाय 10। समझा ना मैं क्या बोला? तो बस इतना इतना कैलकुलेशन अलग है, बस खत्म। सेम वो सब में विच एवर इज लोअर ही रहेगा, वो तुमने खुद से लिख दिया तो भी चलेगा, विच एवर इज लोअर। इतने का तुमको एग्जम्पशन मिलेगा, और इसमें को इसको माइनस करोगे तुम टोटल में से, तो तुमको क्या मिलेगा? टैक्सेबल। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन अपन उसके लिए करते कि आप पोगा में कवर्ड नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ करता हूं, ये तुमको करना है, बोलो क्या करते हो? ट्राई करते हो? ठीक है, तुम ट्राई करके देखो। आए समझ में? सर हाफ इंटू 10 मंथ्स का सैलरी, 10 मंथ्स का बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। सर बेसिक को तो बेसिक है, डीए को आपको इंटू 10 करना पड़ेगा, और सर कमीशन जो आपको मिला है वो 1% साल भर का मिला है, इसको करना पड़ेगा आपको 10 महीनों का, क्योंकि बाकी सारी चीजें जब आप 10 महीनों के कर रहे हो तो आप कमीशन एक साल भर का कैसे ले सकते हो? सर यही तो सबसे इंपॉर्टेंट गलती थी जो मैं चाहता था तुम करो। सर इसको ऐड करके रुक मत जाना, इसका आपको एवरेज चाहिए तो इसको करना है डिवाइडेड बाय 10। सर डिवाइड बाय 10 करके भी रुक मत जाना, आपका फॉर्मूला देखो, आपने हाफ इंटू एवरेज 10 मंथ का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हमने क्या देखा था कि वो कंप्लीट है तो कंप्लीट है, इसमें 6 महीने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पे 26 साल आ जाएगा। तुम्हारा आंसर इसका आना चाहिए 8,58,000। तो ये इनमें से सबसे लेस शायद यही है, तो इसमें से 15 लाख में से आप इसको लेस करोगे तो आंसर बचना चाहिए 6,42,000, ये वाला। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं समझा यहां तक? ऐसा कुछ है? पक्का? चलो मैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, लीव एनकैशमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, लीव एनकैशमेंट। अब सर ये लीव एनकैशमेंट होता क्या है? जब भी आप कोई कंपनी में जॉब करने जाते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपको कुछ छुट्टियां देता है जो आप ले सकते हो खुद से, पेड लीव होती है वो, मतलब उसका पगार नहीं कटेगा। आइडियली कैसा होता है कि अगर आप 4 दिन नहीं हो, आप 4 दिन गोवा घूमने जाते हो, तो आप 4 दिन ऑफिस में आए क्या, तो आपके ऑफिस में पगार कटने वाली है, बराबर है। लेकिन हर कंपनी साल भर में कुछ छुट्टियां देती है एम्प्लॉयज को कि आप खुद से ले सकते हो, इसकी पगार मैं तुमसे नहीं काटूंगा। ये कैश लीव है, मतलब आप भले ऑफिस में मत आना बट फिर भी हम आपकी पगार नहीं काटेंगे। सपोज मुझे ऐसा हर साल की 40 छुट्टियां मिलती है, समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, मुझे हर 365 दिन में 40 दिन की छुट्टियां मिलती है। अब क्या होगा कि मैं इसको यूटिलाइज कर भी सकता हूं, मैं इसको यूटिलाइज नहीं भी कर सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यार मैंने 25 दिन यूटिलाइज कर ली, मैंने 25 छुट्टियां ले ली साल भर में, अब इसमें तुम तबियत खराब हो, मम्मी की तबियत खराब है, मेरी दादी गई, मेरे दादा गए, वो सब छुट्टियां इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। उसके लिए अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी, दादाजी की छुट्टी अलग, दादी जी की छुट्टी अलग, फिर पड़ोस वाली की दादी की अलग, मेरे बच्चे के साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितनी आपको लिमिटेड लीव्स है उतनी लीव्स है, उसके अलावा आप छुट्टियां लो, कोई दिक्कत नहीं है, पगार कटेगी। ठीक है, तो सपोज 40 लीव्स थी इस साल में, एक मिनट 40 लीव्स थी इस साल में, मैंने 25 लीव अवेल कर दी, मतलब कितनी छुट्टियां नहीं ली मैंने? 15। तो ये 15 लीव अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो अगले साल मेरे पास छुट्टी लेने के लिए टाइम कितना हो जाएगा? 40 छुट्टी प्लस 15 छुट्टी, 55 छुट्टी।
अब मैंने अगले साल में एक भी छुट्टी नहीं, इस साल भर में पूरे दिन जाके वहां पे बैठा था बकासुर जैसा। सर मैं कैसे बैठा था? अरे कोरोना था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो छुट्टी कैसे लोगी? ऐसा मन में घर, अब तबीयत भी खराब है तो लेटे लेटे काम कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ऑफिस में नहीं कर सकते, यहाँ पे तो कर सकते हो। तो मैंने साल भर में एक भी छुट्टी नहीं ली, तो ये साल की 55 छुट्टियां बच गई थी। 55 छुट्टी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है इसमें। क्यों? कहीं नहीं होता है ऐसा, उस साल की छुट्टी साल में। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बस एक कैप के साथ में आता है कि मैक्सिमम इतने के ऊपर आप अपनी छुट्टियां नहीं लेके जा सकते हो। ऐसे कर करके तो नहीं तो अब इतने साल काम करोगे और एक साल पूरी छुट्टी मार लोगे, एक साल की पगार फोकट में। बोले इस साल अब मैं 365 दिन छुट्टियां बची है मेरे पास में, ये साल अब मैं काम करने नहीं आऊंगा, मेरी पगार मेरे घर पे भिजवा देना रे। गॉगल पहन के बैठ जाना वहीं पे। कोरोना में तो सब घर पे ही थे, तो लीव कैसी? तो लीव नहीं हुई ना, मैंने क्या बोला लीव? मतलब फिर उनको तो वो होगा भी नहीं ना उसमें कि ये लीव तुमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो। नहीं नहीं नहीं, लीव तो मिलेगी, पॉलिसीज तो सेम रहेगी। और सर ये जो जैसे दिवाली वगैरह पे रहते हैं लीव, तो वो भी उसमें नहीं 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 नहीं, वो तो एनीवेज लीव है ना, वो तो एनीवेज लीव है। ये लीव है जो आप छुट्टी ले सकते हो, जो अलग अलग दिन पे लेंगे। लेकिन दिवाली अलग अलग दिन पे नहीं मनाएंगे ना, सब बुलबुल थोड़ी है कि दशहरे के दिन पे पटाखे फोड़ने चालू कर दिए। नॉर्मल अगर जो रैशनल इंसान है वो जो दिन दिवाली उसी दिन दिवाली मनाएगा, सही बात है ना? तो ये जो दिवाली जो फिक्स छुट्टियां है, क्रिसमस की छुट्टी वो फिक्स है, ये छुट्टी नहीं। पेड छुट्टियां मतलब इसके अलावा जो छुट्टी होती है वो। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस छुट्टियों को अगले साल लेके चले जाओ, नहीं तो आप मारवाड़ी हो तो एक काम कर लो, जो छुट्टी आपने यूज नहीं की उसका पैसा ले लो, आप उसको एनकैश करवा सकते हो। कि बोले मैंने छुट्टी नहीं ली ना, मैं अगर छुट्टी लेता था तो तेरा पैसा तेरे को देना पड़ता था, मैंने छुट्टी नहीं ली तो मेरे को पैसा दे दे, बात खत्म। बात तो एक ही हुई तेरे लिए। वैसे भी मिलेगी तो वैसे भी तो मिलेगी ना, अगर उसने ली भी तो 40 दिन की छुट्टी, वैसे भी तो उसको मिल ही जाता ना। पगार पूरी मिलती ना, फिर कभी अलग से छुट्टी लेता तो उसकी पगार उस छुट्टी के साथ में एडजस्ट हो जाती ना। अच्छा, वो जो 40 दिन काम करेगा उसके लेगा। एग्जैक्टली तो सर आपने जो छुट्टियां अवेल नहीं किया है उसको आप एनकैश करवा सकते हो, आप उसको कैश ले सकते हो। कैश मतलब बैंक में भी ले सकते हो। हाँ पैसे मिल रहे, सही है ना छुट्टी पे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसी को लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। आई बात सुनो, लीव एनकैशमेंट। तो सर अभी लीव एनकैश करेंगे। अब मेरे को बात बताओ कि तुमने लीव के बदले में पैसा लिया है, क्या तुमको इनकम हुई है? क्या चोट्टा गवर्नमेंट इसके ऊपर इनकम टैक्स मारेगा? तो जब वो इनकम टैक्स मारेगा तो हम कुछ उसको एग्जम्पशन क्लेम करेंगे वापस, वही लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। आई बात समझ में? कोरोना पीरियड में तो हाँ सर ये कोरोना के टाइम पे तो घर पे ही काम किया सबने, leave बराबर। नहीं ली। ये पिछले लीव नहीं ली ऐसा नहीं बोल सकता हूं। कैसा हुआ है कि जैसे कोरोना खुल गया तो लोगों को लगा चलो घूम के आते हैं, तो 4 दिन घूमने चले गए, तब तो छुट्टी लगी ना। हाँ उन्होंने अगर बताया नहीं कि मैं घूमने गया हूं और लैपटॉप साथ में लेके गए तो बात अलग है। लेकिन कितना अजीब लगेगा कि तुम मॉलडीव्स के बीच में बैठ के ठगा ठगा लैपटॉप कर रहे हो करके। तो अगर तुमने ऐसी छुट्टी अप्लाई करके रखी कि भाई मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, मुझे किसी प्रकार का कॉल ना कीजिए, तो बट ऑफ कोर्स आपकी छुट्टी लग गई तो आपके 4 दिन माइनस हो जाएंगे। या फिर जो लोग हॉस्पिटलाइज थे, जो क्वारंटाइन जोन्स में थे, जैसे हॉस्पिटल्स में थे, अब वहां बैठ के तो हॉस्पिटल में बैठ के तो काम नहीं किया ना उन्होंने, तो उनकी छुट्टी तो लगी होगी ना कहीं ना कहीं। या फिर वो नहीं थे, उनके माँ बाप हॉस्पिटल में थे, तो भाई साहब अब मैं पूरे दिन अगर काम करूंगा तो मैं माँ बाप का ध्यान कैसे रखूंगा? तो उन्होंने पहली लीव डाल के रखी कि भाई मैं 4 दिन तक ऑफिस में नहीं रहूंगा, मेरे को किसी ने कोई कॉल मत करना। क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस अलग हुआ है, लेकिन जो पहले कम्युनिकेशन होता था वो थ्रू फोन तो हो ही रहा था ना। तो बार बार हर 10-15 मिनट में फोन तो आते ही ना तुमको, ऐसा। हाँ वृंदा कुछ बोल रही थी तू? सर मैं ऐसे बोल रही थी कि पिछले साल की अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है लीव्स, हम्म तो ये अभी ये कोरोना के पीरियड में सभी लोग एक भी छुट्टी नहीं ली, बराबर। यही काम, हाँ फिर ये साल की भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर आपकी कंपनी में पॉलिसी वैसी है तो। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई है ना, ये हर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है। जैसे टाटा कंपनी ने 100% बोला था आपकी कोई भी छुट्टी लैप्स नहीं होगी, आप पूरा 100% को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन आई गेस
माइंड ट्री था ये कंपनी या एलएनटी थी, दोनों में से कोई एक कंपनी ने बोला है कि आपको सिर्फ 50% सैलरी 50% ही छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगी, भले ही तुमने रोज काम किया हो तो भी। वो कंपनी की पॉलिसीज होती है। जनरली आइडियली ऐसा होता है कि आप यस अगर आपने साल भर में छुट्टियां नहीं लिया है आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एक सीलिंग लिमिट तक की। ऐसा नहीं तो आप एक काम करो ना, आप इतनी छुट्टियां का क्यों टेंशन ले रहे हो, पगार ले लो सीधा सीधा इनकैश कर लो उसको, लोड ही खत्म। आई बात समझ में? लेकिन पैसा लोगे तो टैक्स जाएगा। सर पूरा टैक्स जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ एग्जम्पशन माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना माइनस होगा? सर लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर इफ इट इज रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, मतलब सर छुट्टियां आपको अभी बची है लेकिन आपने जो छुट्टी नहीं ली उसका पैसा आप करंट ईयर में ले रहे हो तो 100% टैक्सेबल, खत्म बात। सर हमने ये पैसा जमा किया 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 और एकदम रिटायरमेंट के बाद में एक साथ पैसा ले रहे हैं पूरा लमसम में, यहां पे एग्जम्पशन क्लेम करने मिल सकता है। उसमें भी सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एग्जम्प्ट, वो लीव की अमाउंट ना जो लीव की अमाउंट, यस लीव की अमाउंट, लीव की अमाउंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एग्जम्प्टेड। सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो लीस्ट शैल बी एग्जम्प्टेड। सर लीस्ट कितना है? पहली तो एक अमाउंट है 3 लाख रुपए, दूसरी अमाउंट है एचआरए क्या बोल रहा हूं, लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, तीसरा है 10 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 10 मंथ सैलरी। ये वापस वही है 10 मंथ की सैलरी आ जाएगा, आप कैलकुलेट करते 10 मंथ की सैलरी। अरे हाँ या ना? ठीक है, सर एक बार ये वो बताना ना कैसे लिखना है क्या चीज? ये पिछले बार जब हाँ मतलब इसको कैसे लिखते हैं वो ना, हाँ वो अपन खुद अपने बुक में लिखेंगे ना इसको। हाँ ठीक हाँ और फिर फोर्थ पॉइंट कैश इक्विवेलेंट of unavailed leave based on last 10 months average salary to the credit of his retirement and this earned leave cannot exceed 30 days for every year for the actual service। यही तो पॉइंट लास्ट इंपॉर्टेंट वाला है, मतलब दिमाग खराब करने वाला है। पहले तो सर एक काम करते हैं ना, धीरे धीरे हल्लू हल्लू चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाँ, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2020 आफ्टर 20 years 10 months of service and received leave salary of 5 lakh rupees. Other details of his salary are as follows. Basic salary 5,000 per month, 1,000 rupees one increase with effect from 1/4/2020। सर मतलब इसके पहले सैलरी कितनी होंगी उसकी? 4,000। मतलब सर अब 10 महीने का कैलकुलेशन जब करने वाले हैं तो यहां से पहले के 10 महीने जाएंगे तो कुछ महीने इसके 4,000 वाले और कुछ महीने इसके 5,000 वाले। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में कमीशन डीएनएस अलाउंस 3,000 रुपए का है, 3,000 60% ऑफ विच फॉर्म्स रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा ओके, कमीशन 500 रुपया पर मंथ। ऐट साला लूंगा इसको, क्यों? परसेंटेज नहीं है सर। बोनस 1,000 रुपया। लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस 480 दिन पूरे सर्विस में, एक साल में नहीं है, इतना तो साल में दिन नहीं होते साले गधेड़े, दिमाग मत लगाना, ये बुलबुल के दिमाग में 480 दिन, बाप रे बहुत छुट्टियां ले ली इसने। साल भर में नहीं है ये, पूरे सर्विस में। सर्विस कितने साल की थी उसकी? 20 ठीक है सर, इसमें अब 6 मंथ पहले बाद में वो कोई विषय नहीं है इसमें। तुमको मैंने कहीं बताया कि इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कहीं पे लिखना ही है तुमको। ही वाज एंटाइटल्ड टू 30 days पर ईयर। सर पर ईयर, अब पर ईयर मतलब कितने साल काम किया इसने, अब हमको कैसे माना, हमको कैसे पता? अगर कुछ नहीं बोला ना तो कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटेड वाला, 6 मंथ्स वाला नहीं। मतलब इसने कितने साल काम किया था एक्चुअली? 20 साल 10 महीने। तो मैं इसको 21 साल लिखूंगा क्या? नहीं 20 दिन, 20 साल सॉरी। तो सर इसको हर साल के 30 छुट्टियां मिलती थी और वो भी 20 सालों तक, मतलब इसको एक्चुअली 600 छुट्टियां मिली हुई थी। अरे 20 साल में, और उस 20 साल में से चोट्टे ने 480 दिन तो ले भी ली, मतलब कितने दिन नहीं ली? तो 10 मंथ तो होंगे अकाउंट
क्या क्या क्या? 10 मंथ का कुछ होगा ही नहीं क्या काउंट? नहीं ना, मैंने बताया ना तेरे को, अगर कुछ नहीं है वहां पे लिखा हुआ तो तेरे को वो कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटेड लेना पड़ेगा, जैसे तूने नॉट कवर्ड अंडर पोगा में लिया था। हाँ तो फिर भी जैसे 10 मंथ तो उसने उधर काम किया ना, तो कुछ नहीं, नहीं आएंगे। कुछ नहीं। और वैसे भी हम इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, हमने ये थोड़ी बोला कि कंपनी उसको छुट्टियां नहीं देगी, हम तो उसका इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं सिर्फ। इनकम टैक्स में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपनी में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो उसको मिल रहा है, वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो 10 मंथ की इनकम तो उसकी टैक्स को पेंडिंग। टैक्स भरना पड़ेगा उसको, इनकम भी होगी और उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। एग्जाम्पशन के टाइम पे हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, लीव में नहीं आएंगे। लीव में नहीं आएंगे, एग्जैक्टली। और सर अगर यहाँ पे लिखा होता कि ही वॉज एंटाइटल्ड टू 50 डेज एवरी ईयर, तो हम इसको 50 इंटू 20 करते क्या? आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि इसने ऊपर ही बोल दिया सर आप मैक्सिमम एक साल का 30 दिन ही ले सकते हो। अर्नड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज पर ईयर। तो सर आपको छुट्टियां भले ही कितने भी दिन की मिलती हो हर साल की, बट इनकम टैक्स के कंप्यूट के हिसाब से आप मैक्सिमम एक साल के 30 दिन ही ले सकते हो। अपनी औकात कितनी आप छुट्टियां ले सकते हो उसकी, तो 30 डेज। तो सर अगर वहां पे 50 लिखा होता तो भी हम 30 लेते, 30 लिखा है तो भी हमने 30 लिया, और अगर 20 लिखा होता तो चोट्टो 20 लेने का। क्लियर है? अब सर ये क्या है? कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स का सैलरी। अब इसमें क्या होता है सर, आपको पहले तो 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालना है। 10 मंथ का, 10th नहीं रहे, 10 मंथ का एवरेज निकालना है। वो कैसे निकालोगे सर? 10 इंटू बेसिक सैलरी इंटू 10, डीए परसेंटेज वाला इंटू 10 प्लस कमीशन अगर परसेंटेज वाला इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। अरे है ना? इस सब को डिवाइड कैसे करोगे? 10 से। तो ये आपका आ गया एवरेज सैलरी, एवरेज 10 मंथ सैलरी। सर ये हमको कैलकुलेट करना था क्या? ये कैलकुलेट करना ही नहीं था आपको, तो क्या कैलकुलेट करना है? कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड लीव। सर अनअवेल्ड आपको मिली कितनी छुट्टियां थी सर? सर आपको मिली जो थी ना छुट्टियां, वो मिली थी आपको 30 इंटू 20 इक्वल टू 600 छुट्टी आपको मिली थी, माइनस आपने यूटिलाइज कितना कर दिया सर? 120 तो सर अनअवेल्ड कितना है आपका? 120 डेज, बराबर। मेरे को एक बात बताओ, तुमको जो पगार मिलती है वो डेज पे हिसाब से मिलती है, महीने के हिसाब से मिलती है? मंथ के हिसाब से। तो इसको अगर मेरे को मंथ में बोलना है तो मैं मंथ में कैसे बोलूंगा इसको? तो 120 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज बराबर है, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। समझ में आया था तुमको? एवरेज सैलरी पर मंथ। हमारी एवरेज 10 मंथ की सैलरी जो आई थी ना, ये 10 मंथ की थी, इसका पर मंथ चाहिए, तो तुम क्या करने वाले हो? 12 डिवाइडेड बाय 10 ना। 10 महीने की सैलरी और पर मंथ करना है तो डिवाइड बाय 10 ही करेगी ना। साल भर की सैलरी थी उसको पर मंथ करना है तो तू डिवाइडेड बाय 12 करती है। बुलबुल बुलबुल एक बात बता, 4 लोग मिलकर नागपुर जाते हैं, उसका खर्चा 10,000 रुपया होता है, 12,000 रुपया होता है, तो टोटल क्या? डिवाइड बाय 4। तो यहां पे हमारी सैलरी जो थी वो 10 महीनों की थी, तो इसका पर मंथ निकालना तो क्या करेंगे? हाँ निशा। ऑलरेडी तो हमने मतलब 10 महीने की एवरेज है, लेकिन वो एवरेज है ना, तो काट पीटा के एक ही महीने की हुई ना। क्या क्या? 10 महीने की एवरेज है ना वो, हाँ तो 10 महीने की एवरेज है, मतलब उसको हमने ऑलरेडी 10 से डिवाइड किया हुआ है, तो वो एक मंथ की एवरेज हुई ना। नहीं, इसमें जब कमीशन और प्राइस चेंज होगा तो तेरा आंसर अलग आ सकता है। तूने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से 10 से डिवाइड किया है, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया तेरा।
तूने 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, तो तू अगर यहाँ पे तू डायरेक्ट लेगी, कल जाके तेरा कोई कैलकुलेशन आया जो साल भर का है, लेकिन तूने यहाँ पे किया है 10 महीने का, तो तेरा वहां पे आंसर गड़बड़ा सकता है। इसके लिए सेफ साइड तू ये कर ले, फॉर्मूले पे डाल दे उसको, तो तेरे को लोड लेने की जरूरत नहीं है उसका हमेशा। आई बात समझ में? नहीं, मैं वो नहीं बोलती थी, मैं ये बोल रही थी जो यहाँ पे लिखा है ना नीचे 120 days upon 30 days into average salary per month, ये बोल रही थी मैं। वो जो ऊपर फिगर आएगी वो ही लिख सकते हैं ना यहाँ पे? हाँ लिखना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो आगे। Yes, sir. तो अब मेरे को इसका आंसर कैलकुलेट करना है। अरे भाई ये फॉर्मूला लिखना है। अच्छा हाँ, तुमको पहले एक बार लिखवा देता हूँ मैं कैसे लिखना है इसको। लीव एनकैशमेंट लिखा तुमने? इसका अमाउंट कितना है? 3 लाख। सर ये वो रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट वाला है ना? वो मैं उसका चार्ट नीचे लिखवाऊंगा, पहले से फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें दो ही बातें हो सकती है ना, या तो वो रिटायरमेंट के पहले मिला है या तो रिटायरमेंट के बाद मिला है, ऐसा। चलो हुआ हुआ। अब इसको कैलकुलेट करके दोगे कि मैं करूं? कर लेते एक बार ट्राई। तू किधर से आया बे? कब से? तू कहाँ से है, कब से झूठी बातें कर रहा? अरे आपका ऊपर के समय से आ गया मैं। हाँ? आपके ऊपर जो उसमें लड़ी पड़ा है। अच्छा उसने उसको देखा था। गुड मॉर्निंग। नींद नहीं खुली कि उठाया नहीं बढ़िया। हैं? अरे आप मैसेज तो नहीं ग्रुप पे ऐसे समय डालना ना, सुबह भी एक मैसेज ज्वाइन है ऐसा कर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 9 बजे की बैच समझा वापस। ओ हो, पूरी बैच 8 बजे आके तेरे को 9 बजे का मैंने बोला था, कान में आके बोला था मैंने तेरे को कि 9 बजे बैच है। अपनी रोज 9 बजे रहती ना, तो आप ऐसे एक बार ज्वाइन डाला करो। अरे कल तो बात किया था अपन ने कि 8 बजे रहेंगे करके। श्रद्धा आ गई सुबह सुबह, तू नहीं आया, शर्म आ रही है तेरे को? चलो करो कैलकुलेट। सैलरी हम लोग बेसिक सैलरी इधर जो ब्रैकेट में लिखा है 1000 वाज इंक्रीज, तो पहले 8 मंथ्स के लिए हम लोग 5000 देंगे ना। देख उसका रिटायरमेंट कब हुआ है?
दिसंबर में वो भाई साहब रिटायर हो गए। तेरे को इसके पहले के 10 मंथ चाहिए, मतलब क्या आएंगे, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, उसके पहले क्या आता है, अगस्त, उल्टा कभी समझा नहीं मैंने, आता भी है। अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, जुलाई, जून, जून, मई, कितना हो गए महीने, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 चाहिए मेरे को। मई के बाद में अप्रैल, 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 मार्च मार्च, और फेब, अप्रैल। हो गए 9 10 महीने तेरे। अप्रैल से तो बढ़ गई ना 1000। हाँ ना, महीने महीने लिख रहे हैं अपन तो सिर्फ, वो बाद में देखेंगे। अभी बराबर है, 9 महीने हो गए तेरे, 10 महीने हो गए तेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। अब मेरी 5000 into 8 करेंगे। नहीं, हाँ रुक जा, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, 1 मिनट देख लेते अपन क्या करेंगे। इसकी सैलरी 1 अप्रैल से 5 हजार हो गई, तो अप्रैल के बाद से 5 5 5 5 5 5 5 5 और इसके पहले 4 और 4, तो देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 into 8 सर इसमें ऐसा भी तो 40,000, प्लस 4 into 2, 80,000। ठीक है जो भी है। हाँ हम लोग ऐसा भी तो एक मिनट निशा, हाँ सर इसमें मैं बोल रही हूँ हम लोग ऐसा भी तो अज्यूम कर सकते हैं ना कि पहले 5000 थी उसके बाद 6 हो गई। नहीं ना, बेसिक सैलरी उसने 5 हजार बोला है और उसमें लिख के दिया ना कि 1,000 रुपया उसका अप्रैल से बढ़ा हुआ था, जबकि रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपना बेसिक सैलरी देख रहा है ना। जब रिटायर हुआ तब उसकी सैलरी 5 थी और बोल रहा है कि 1,000 मेरी बढ़ी है, इसका मतलब क्या था कि नहीं बढ़ी है, इसके पहले वाली कम होगी ऐसा। ये सैलरी 5 हजार अप्रैल में बोलता वो तो बात मैं अज्यूम कर सकता था, लेकिन ये दिसंबर में बोल रहा है मेरी सैलरी 5 हजार है। हाँ। उसके बाद डियरेंस अलाउंस जो है वो 3000 है, हम्म उसका 60% देंगे हम्म और into 10 divided by 12 करेंगे। डिवाइड बाय 12 क्यों कर रही है, इंटू 10 कर रही है ना तू, ये तो मंथ ही है ना तेरा, पर मंथ ही है ना वो तो, पर एनम रहता तो तू इंटू 10 डिवाइड बाय 12 करती, ये तो दिया ही उसने पर मंथ है। into 10। और कमीशन ले लेना 500 इंटू 10। ये गधेड़ी क्या, हाँ नहीं लेगी कमीशन, कमीशन नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज नहीं है। हाँ अच्छा, परसेंटेज नहीं लेंगे। कहाँ है, एच भी नहीं है ना। ये देख कमीशन कितना है। और डीए भी सिर्फ वो रिटायरमेंट बेनिफिट जितना। यस, तो 6600। 6600, 26,400। 26,400, अच्छा याद रखना 10 मंथ्स एवरेज सैलरी करना था तुमको, तुमने 10 मंथ की एवरेज कर दिया है, उसको इंटू 10 भी करना पड़ेगा ना भाई साहब। सर into 10 ये लिखा नहीं। तुमको 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए ना, एवरेज निकालने के लिए तुमने पिछले 10 महीने का लिया है, लेकिन तुमको 10 मंथ का एवरेज सैलरी चाहिए। मैंने सिर्फ एवरेज सैलरी बोला क्या तुमको, 10 मंथ का एवरेज बोला तुमको, फर्क समझ रहे हो क्या तुम। देखो यहाँ पे दो बातें आती है, एक होती है कि 10 मंथ, एक होती है एवरेज सैलरी। सर एवरेज मतलब कितने दिन का एवरेज, 1 दिन का एवरेज, 2 दिन का एवरेज, 4 दिन का एवरेज, 2 महीने का एवरेज, 5 महीने का एवरेज, 6 महीने का एवरेज, 2 साल का एवरेज, 50 साल का एवरेज। सर एवरेज मतलब कितने साल का एवरेज, तो भाई साहब हमको समझ गया कि एवरेज मतलब 10 महीनों का एवरेज, इसको निकाल के साइड में रख लो। बट मेरे को क्या सिर्फ एवरेज चाहिए क्या, मेरे को सर 10 महीनों का एवरेज चाहिए, तो मतलब 10 इंटू जो आपने एवरेज निकाला था वो। आई बात समझ में। सर थोड़ा लेफ्ट में करना ना, वो क्या लिखा है वो। हाँ
इंटू 10, 100 क्यों रे भाई, 100 में 66,000 66,000 है ना सैलरी। करेक्ट। मिताली तूने कुछ अलग आंसर दिया था, तूने फाइनल आंसर बताया था क्या? फॉलोइंग बताया हाँ परफेक्ट है। कितना आंसर बताया तूने? 26,400। ओके सर वही है ना इसका 30 days 20 years का, तो फिर वही करेंगे ना जो आपने ऊपर किया था। इसको टोटल लीव्स कितनी मिली होगी? सर कंपनी ने बोला है कि आप साल भर में 70 लीव ले सकते हो, तो आपको 20 साल में कितनी मिलनी चाहिए? 70 इंटू 200, 70 इंटू 20, 1400। बट मिलेगी क्या? इनकम टैक्स वाला 70 लेने देगा क्या आपको? वो मैक्सिमम कितना लेने देगा आपको? 30। तो 30 इंटू 20, हमेशा हमेशा क्या बोल रहा हूँ, 30 इंटू 20 600। कल जाके ये मत बोलना सर हमेशा 600 ही आएगा ना। अरे हर साल थोड़ी, हर इंसान थोड़ी 20 साल काम करेगा, और जरूरी थोड़ी कि हर कंपनी 30 दिन ही देगी, कोई कंपनी 5 ही दिन दी तो सर आपका 30 इंटू 20 मतलब कितना आ गया? 30 इंटू 20 600। इतना टोटल था। आपने अवेल कितना कर लिया इसमें से? 480 अवेल किया, मतलब आपने कितना अवेल नहीं किया? 120 अवेल नहीं किया। बट मैं डेज में कभी भी अपनी सैलरी गिनता हूं क्या? मेरी सैलरी कितनी आएगी? 120 डिवाइडेड बाय 30। तो सर 120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू, सर इतना खत्म कर दूंगा क्या मैं? सर ये तो हो गया लीव एनकैशमेंट अवेल्ड अनअवेल्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। वो कितनी थी मेरी एवरेज सैलरी पर मंथ? तुमने अभी निकाला ऊपर। 66,000 नहीं था, वो 10 मंथ का एवरेज था भाई साहब। एवरेज पर मंथ तुम्हारा 6,600 ही था, देख लो। डिवाइडेड बाय 10। हाँ तो सर ऊपर आपने जो किया था उसको डिवाइडेड बाय 10 किया था आपने, 26,400। भारती तेरे को नहीं समझा कुछ तो बीच में। तूने 66,000 लिया होगा क्योंकि तूने वहां पे 10 मंथ एवरेज सैलरी लिया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ एवरेज सैलरी पर मंथ बोला है। तो वो जो तेरा इसलिए तो मैंने ऊपर डिवाइड बाय 10 करके बोला था, क्योंकि ऊपर हमने 10 मंथ का एवरेज लिया था और हमको नीचे से पर मंथ का एवरेज चाहिए। तो अगर तुमको डिवाइड बाय 10 नहीं करना है तो सिंपल सिंपल है, जो तुमने एवरेज निकाला था वो एवरेज यहाँ पे फिट कर दो। तुमने एवरेज निकाला था 6,600 का, 26,400। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना है? ना फाइनल टैक्सेबल एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। अरे आंसर, फाइनल आंसर तो दो। टैक्स कितना, कितने इनकम पे टैक्स निकालने वाले हो? 26,400 है ना। वो तेरा एग्जाम्पशन है ना बेटा। तुम्हारा एक था 500, सॉरी 5 lakhs, एक था 3 lakhs, एक आंसर आया तुम्हारा 66,000 और एक आंसर आया तुम्हारा 26,400, विच एवर इज लेस। तो 26,400 तुम्हारा सबसे लीस्ट था। कोई दिक्कत तुमको यहाँ तक? कुछ नहीं समझा ऐसा? ठीक है, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब अपना बचा है मेन, एक मिनट रुको, अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन बचा है, ये एक बचा है और मोटर कार बचा है, 3 बचा है। ठीक है, और 2 लेक्चर लगेंगे अपने को सैलरी को खत्म। 50% चैप्टर खत्म हुआ। हाँ श्रद्धा? नहीं वापस शीट भेजिए। ग्रो इस पे देख, ऐप पर देख, ऐप पर देख मिल जाएगी।
हाँ हाँ ऐप पर मैंने तुमको नोटिफिकेशन भी भेजा ना कि मैंने डाल दी करके। हाँ मैसेज आया था मुझे। हाँ है स्टडी मटेरियल में चले जाना, वहीं पे मिल जाएगी तुमको। ठीक है। अच्छा इसको अपन ने एक लिखना थोड़ा इनकम्प्लीट था अपना, ये वाले को लिखा नहीं ना अपन ने। वो लीव एनकैशमेंट में फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना तुमने, ये उसको फर्स्ट की जगह ए लिख दो। 1 लिखा होगा ना तुमने, उसको ए लिख दो। जो अभी अपन ने ये लिखा ना, इसको ए लिख दो। ये अभी जो 5 पॉइंट लिखे हाँ हाँ, ये सारे सब एक ही बात है भाई। अरे समझो ना, नींद में है वो अभी, तुम उसको टेंशन मत लो इतना मैं उसका। नींद में नहीं हूँ यार। हाँ कोई बात नहीं। ये बी पॉइंट है। हाँ, नीचे का पॉइंट लिखना, बी पॉइंट नहीं है, स्टार मार्क करके लिखना। सर एक सेकंड हाँ बस। देख लो सही लिखा है क्या मैंने। सर ऊपर करना। कोई डाउट नहीं आज के इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।